Hello everyone, welcome back to Medicine Nursing. So in our last class, we have discussed regarding the introductions of ectopic pregnancy, then site for ectopic pregnancy, risk factor of ectopic pregnancy, then the outcome of ectopic pregnancy, either abortions or rupture, and some facts about ectopic pregnancy. So this is our class 2 second part of ectopic pregnancy, where we will exclusively discuss about the diagnosis method of ectopic pregnancy. Before giving the management, our last class will be the management of ectopic pregnancy. So management also having surgical management, definitive management, expected management, medical management, all categories are there. So which one will you take for those particular mother having ectopic pregnancy? For that thing, you must be knowing the diagnosis of ectopic pregnancy. Why? Because the earlier, if you diagnose the ectopic pregnancy in earlier stage, then you can prevent the severe outcome of ectopic pregnancy like rupture, through which shock, hemodynamic instability, everything you can prevent. So for taking proper management, you should diagnose the ectopic pregnancy earlier. Now the question is, how to diagnose this ectopic pregnancy earlier? So today we will discuss this diagnosis of ectopic pregnancy only. Now, if someone asks you how to diagnose the ectopic pregnancy, so in general, how we are diagnosing the pregnancy, the same way we will diagnose the ectopic pregnancy only. So we will check the beta HCG level through urine test, UPT test. Then we will do TVS, transvaginal ultrasounds. Okay, vaginal ultrasound. And the extra things we will do is that discriminatory zone of beta HCG. By checking the discriminatory zone of beta HCG, we will diagnose the ectopic pregnancy. Now, how we will do that, we will discuss in our today's class. Let's think one mother came to you with the complaints of amenorrhea, pain in abdomen, breast tenderness, like all signs of pregnancy. But how will you confirm that mother already conceived or mother carries the pregnancy? So to diagnose the things, when mother will come to you, okay, mother came to you with complaints of amenorrhea. Okay, you know that during pregnancy amenorrhea will be there, breast tenderness will be there, okay, pain in abdomen, all will be there. So for that, you will tell mother to check the beta HCG level. Okay, so this is the thing. First we will do beta HCG level. Okay, first things we will do. Now, if beta HCG level value will come more than equal 25 milli international unit per ml, then you will consider that mother is pregnant. So this is the sign that mother is pregnant. If it is less than that, then it is suspected cases. Okay, so if it is more than equal 25 milli international unit per ml, this beta HCG value, then you will consider that mother is pregnant. Now, there will be two cases. Either it is normal pregnancy or it can be ectopic pregnancy, right? So in both cases, beta HCG value will be more than equal 25 milli international per ml. So by checking this beta HCG value, you can get to know whether mother is pregnant or not. If mother is pregnant, then there will be two possibility. Either it can be normal pregnancy or it can be ectopic pregnancy. So beta HCG value से आपको ये पता चलेगा कि मदर प्रेग्नेंट है कि नहीं, बट इससे पता ये नहीं चलेगा whether it is ectopic pregnancy or it is a case of normal pregnancy. So to rectify the normal pregnancy or ectopic pregnancy, you will do TVS. So your next step will be TVS,
that is transvaginal ultrasound, TVS. Okay, transvaginal ultrasounds. So this is the second thing, transvaginal ultrasounds. Okay, so transvaginal ultrasound से क्या पता चलेगा? With this TVS, you can identify the location of pregnancy. You will find out the location of pregnancy. ठीक है, whether it is inside uterus or it can be outside uterus. ठीक है, outside uterus. If it is inside uterus, that means this is good. That means it is normal pregnancy, normal intrauterine pregnancy. But अगर pregnancy आपको fetal sac, yolk sac, fetal pole या फिर fetal cardiac activity, gestational sac, all you can see through TVS outside the uterus, that means this is a case of ectopic pregnancy. ठीक है, तो TVS से आपको क्या पता चलेगा कि लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स यू विल फाइंड आउट द जेस्टेशनल सैक whether it is inside uterus or whether it is outside uterus. Then you will get to know whether it is a case of normal pregnancy if the gestational sac is in uterus. If the gestational sac outside the uterus, then it will be ectopic pregnancy. अब TVS के सिचुएशन में भी दो केस अराइज हो सकते हैं. जैसे कि मान लो आप बीटा HCG वैल्यू चेक किया एंड यू गॉट दिस बीटा HCG वैल्यू मोर देन इक्वल 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml. सो इससे आपको पता चल गया कि मदर प्रेग्नेंट है. अब उसको आपको फाइंड आउट करना है वेदर इट इज अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी. सो फॉर दैट यू विल गो फॉर TVS. अब मान लो कि TVS के लिए TVS में जेस्टेशनल सैक, इसका भी एक क्राइटेरिया है. जेस्टेशनल सैक कैन बी सीन एट मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज. जब प्रेगनेंसी मोर देन इक्वल 5 वीक्स होगा तभी आप TVS में जेस्टेशनल सैक देख पाओगे. आप मान लो मदर आपके पास आया, बीटा HCG वैल्यू मोर देन इक्वल 25. इसमें दो केस हो सकते हैं, मतलब मदर प्रेग्नेंट है. अब इसमें मान लो कि मदर आपके पास आया लेस देन 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, और एक केस में मदर आया मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज. ठीक है, अब मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट बी बाई चेकिंग द जेस्टेशनल सैक, क्योंकि जेस्टेशनल सैक तो मोर देन इक्वल 5 वीक्स में ही आपको पता चल जाएगा थ्रू TVS. आपने मदर का TVS किया, आप TVS में आपने देखा जेस्टेशनल सैक. ठीक है, अब जेस्टेशनल सैक एक केस में आपको मिला इनसाइड यूटेरस, और मान लो दूसरा केस में जेस्टेशनल सैक आपको मिला आउटसाइड यूटेरस. अब अगर यूटेरस के अंदर जेस्टेशनल सैक मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ गुड साइन, प्रेगनेंसी इज नॉर्मल. दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, दैट मीन्स गुड थिंग. बट इफ अनफॉर्चुनेटली आपको जेस्टेशनल सैक यू सीन आउटसाइड द यूटेरस, दैट मीन्स it is a case of ectopic pregnancy. Can you imagine how beautiful concept is behind this? Now, अगर मान लो मदर आपके पास आया लेस देन 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में. नाउ यू कांट सी जेस्टेशनल सैक इन TVS. ओके, अगर मदर का जेस्टेशनल एज लेस देन 5 वीक्स है, you can't see this gestational sac in both cases. Okay, normal pregnancy में भी आपको gestational sac less than 5 weeks of gestational age में नहीं मिलेगा, और ectopic pregnancy में भी नहीं मिलेगा. ठीक है, so you can't see this gestational sac in TVS in both cases. That means in normal pregnancy also you can't find out gestational sac, and in ectopic pregnancy also you can't see the gestational sac. तो आप इन केस ऑफ लेस देन 5 वीक्स में आप कैसे डायग्नोस करोगे कि मदर का
दिस प्रेगनेंसी इज नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो आप इसका बीटा HCG लेवल दोबारा चेक करो. फर्स्ट यू गॉट दिस बीटा HCG लेवल वैल्यू, it was 25 milli international unit per ml. Okay, now again repeat it 48 hours. तो 48 आवर्स में जैसे मान लो आप 48 आवर्स बाद आपने बीटा HCG लेवल चेक किया, आपको मिला 48 आवर्स के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 2 डेज, राइट, आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद आपने बीटा HCG लेवल उसका रिपीट किया. तो डे 3 में आपको आइदर मिल सकता है बीटा HCG लेवल, मान लो 25 के जगह पे अभी 50 हो गया, 50 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml एक केस में. दूसरा केस में आपको बीटा HCG लेवल मिला मानो कि 35 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml. सो अब देखो, पहले तो मदर का बीटा HCG लेवल था 25, 48 आवर्स के बाद बीटा HCG लेवल इंक्रीज up to 50, that means it increases in 2x amount. Here also beta HCG level increases but not in 2x amount. Okay, it increases but not in 2x amount. So जिन केस में बीटा HCG लेवल every 48 hours में 2 गुना हो जाती है, then that case will be नॉर्मल प्रेगनेंसी. नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, बीटा HCG लेवल विल बी इंक्रीजिंग इन 2x अमाउंट एवरी 48 आवर्स इंटरवल. सो लिखो कि इन केस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी बीटा HCG लेवल increases in 2x amount every 48 hours. But here you can see, although here beta HCG level increases but not in 2x amount. So this is a case of ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy में होता क्या है, in case of ectopic pregnancy beta HCG level also increases but not in 2x amount. ठीक है, तो आप 48 आवर्स के बाद बीटा HCG लेवल चेक करो. इन केस में आप TVS मत करो. सो अगर इस केस में आप TVS करोगे तो आपको जेस्टेशनल सैक तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मदर आया लेस देन 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में. तो इन केस में आप TVS के जगह पे दोबारा बीटा HCG लेवल चेक करो. अगर बीटा HCG लेवल प्रीवियस वैल्यू से 2 गुना ज्यादा हो गया 48 आवर्स के बाद, तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी. अगर बीटा HCG लेवल इंक्रीज हुआ है लेकिन नॉट इन 2x अमाउंट, that means this is a case of normal pregnancy. This is very important and very beautiful concept. Okay, so आप बोलोगे कि मैम TVS कब करना होगा और बीटा HCG लेवल कब करना होगा, ये तो समझ आ गया. Now what is the concept of discriminatory zone of बीटा HCG? ठीक है, अब वो concept में चलते हैं. So इसमें क्या हुआ, अगेन आई विल डिस्कस. लेट्स थिंक कैसे डायग्नोस करोगे आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को. सो पहला बात तो आप बीटा HCG लेवल चेक करो. चेक द बीटा HCG लेवल इफ अ मदर केम टू यू विद द कंप्लेंट्स ऑफ एमिनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेन इन एब्डोमेन. मतलब आपको पता चल रहा है कि मदर इज गिविंग कंप्लेंट्स ऑफ टिपिकल प्रेगनेंसी, बट यू हैव टू प्रूव इट that mother already conceived, mother is carrying the pregnancy. So for that you will do the beta HCG level of blood or urine. So you find out that beta HCG level is more than equal 25 milli international unit per ml. If it is more than 25 milli international unit per ml, that means mother is pregnant. अब इस वैल्यू से आपको पता तो चला कि मदर प्रेग्नेंट है. अब वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक है कि नॉर्मल है ये आपको पता नहीं चलेगा बीटा HCG वैल्यू से. सो वो पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा TVS, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड. अब ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके आपको क्या पता चलेगा कि जेस्टेशनल सैक आपको कहाँ मिल रहा है. दैट मीन्स लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपको पता चलेगा थ्रू TVS. सो यू विल फाइंड आउट द जेस्टेशनल सैक whether it is inside the uterus or it is outside the uterus. अगर आपको जेस्टेशनल सैक इनसाइड यूटेरस मिल रहा है, that means this is a good sign, means it is a normal intra-uterine pregnancy, जो कि normally यूटेरस के अंदर ही पाया जाता है जेस्टेशनल सैक. Now if you find out this gestational sac is outside the uterus, then
यू कैन सस्पेक्ट दैट मदर इज कैरिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आपने ये सस्पेक्ट किया, अब प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि ये सस्पेक्टेड नहीं है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो टीवीएस में आपको जेस्टेशनल सैक पता चलेगा एट मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में। अब मान लो कि मदर आपके पास आया, दो केस हो सकते हैं। एक केस में मदर आया मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में ही, तो इसमें तो आप इजीली जेस्टेशनल सैक देख पाओगे क्योंकि जेस्टेशनल सैक मिलता है मोर देन इक्वल 5 वीक्स में ही। सो अगर इनसाइड यूटेरस है तो गुड थिंग, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल प्रेगनेंसी। अगर इट इज आउटसाइड द यूटेरस, यू फाइंड आउट द जेस्टेशनल सैक, देन यू कैन रूल आउट दैट इट इज अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब मानो कि मदर आपके पास, मदर केम, gestational age is less than 5 weeks. Now you can't find out the gestational sac if mother is having less than 5 weeks of gestational age, because that time gestational sac can't be seen through TVS both in normal pregnancy and ectopic pregnancy. So if mother came at less than equal 5 weeks of gestation, लेकिन आपको तो फाइंड आउट करना ही है। आप तो कब मदर मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज होगा तब तक वेट नहीं कर सकते हो। सो आपको रूल आउट तो करना ही है लेस देन 5 वीक्स में भी कि ये एक्टोपिक है कि नॉर्मल है। तो आप उसका दोबारा बीटा एचसीजी लेवल चेक करो। पहली बार आपने किया था उस टाइम आपको मिला था बीटा एचसीजी वाज 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट। अब एज यू कांट सी द जेस्टेशनल सैक एज मदर जेस्टेशनल एज इज लेस देन 5 वीक्स, तो आप दोबारा 48 आवर्स के इंटरवल में बीटा एचसीजी लेवल चेक करो। अगर आपको बीटा एचसीजी लेवल एक केस में 50 मिला, मतलब 25 का 2 गुना, 2x अमाउंट हो गया अभी 48 आवर्स के बाद, देन दिस इज अ केस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें एवरी 48 आवर्स में बीटा एचसीजी लेवल 2x अमाउंट में इंक्रीज होता है। सो पहले था 25, अब हो गया 50। सो इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी वैल्यू का कैसा चेंजेस आती है? इसमें भी बीटा एचसीजी लेवल का इंक्रीज होगा बट नॉट इन 2x अमाउंट। इट कांट बी आइडेंटिफाएबल और कांट बी प्रेडिक्टेबल। जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 48 आवर्स के बाद 2 गुना होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको पता है कि बीटा एचसीजी वैल्यू इंक्रीज होगा बट अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट में। जैसे पहले था 25, अब 48 आवर्स के बाद हो गया 35। इसमें इंक्रीज तो हुआ से ही लेकिन नॉट इन 2x अमाउंट। सो दिस इज अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इतना तक पता चल गया। अब दोबारा इसका भी डिस्क्रिमिनेटरी जोन क्या होगा, जो कि थर्ड डायग्नोसिस है। सो व्हाट इज द थर्ड डायग्नोसिस मेथड? दैट इज फाइंड आउट द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी जोन। सो थर्ड केस में डिस्क्रिमिनेटरी जोन ऑफ बीटा एचसीजी, इस ये कंसेप्ट क्या है? सो डिस्क्रिमिनेटरी जोन ऑफ बीटा एचसीजी मीन्स इसमें जो जोन, डिस्क्रिमिनेटरी जोन मीन्स बीटा एचसीजी का वैल्यू 1500 से 2000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। अब जब बीटा एचसीजी लेवल का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1500 से 2000 तक पहुंच जाएगा, देन यू कैन सी द जेस्टेशनल सैक। ओके, तो आपको पहले पता क्या था? यू कैन सी इन टीवीएस, ठीक है। पहले आपको पता क्या था कि टीवीएस में आप कब जेस्टेशनल सैक देख पाओगे? एट मोर देन इक्वल 5 वीक्स। सो जब आपका बीटा एचसीजी वैल्यू इस रेंज में आ जाते हैं, यू कैन सी द जेस्टेशनल सैक, राइट। सो ये टाइम ही होते हैं मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। जब बीटा एचसीजी वैल्यू 25 से हो जाएगा 50, 50 से इंक्रीज होके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस रेंज पे आ जाएगा, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी जोन ऑफ बीटा एचसीजी। देन आप टीवीएस अगर करोगे तो टीवीएस में आपको जेस्टेशनल सैक शो होगा। सो कंसेप्ट अभी क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी जोन को पता ही क्यों करना है? तो आपके पास मदर अगर आया लेस देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में, आपने दोबारा उसका बीटा एचसीजी वैल्यू 48 आवर्स में चेक किया, आपको मिला एक केस में 50 और एक केस में 35। जहां पे 35 मिला था आपने सस्पेक्ट किया कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो सिम्टम शो कर रहे हैं, मतलब बीटा एचसीजी वैल्यू इज इंक्रीजिंग बट नॉट इन प्रेडिक्टेबल अमाउंट। इट इज इंक्रीजिंग एंड आइडेंटिफाइबल और अनआइडेंटिफाइबल और अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट में इंक्रीज हो रहे हैं। तो
मैं सस्पेक्ट कर सकती हूँ कि ये एक्टोपिक हो सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेटरी जोन से कैसे पता चलेगा? तो आप अगेन रिपीट करो उसका 48 to 72 आवर्स, चलो 48 आवर्स में ही रिपीट करो, 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स रिपीट बीटा HCG वैल्यू। सो रिपीट करते ही जाओ एवरी 48 आवर्स में बीटा HCG वैल्यू में। पहले आपका था 25, देन आया आपका मान लो कि 35, देन 50, देन ऐसे एवरी 40 आवर्स में करते करते रिपीटेटेड बीटा HCG का वैल्यू एक टाइम पे पहुंच गया मान लो 1600। अब 1600 मीन्स इट इज बिलोंग टू दिस रेंज, मीन्स मोर देन इक्वल 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट। अब दैट मीन्स आप अभी क्या कर सकते हो, आप अभी जेस्टेशनल सैक आपको पता चल जाएगा। जेस्टेशनल सैक यू कैन सी इन TVS, क्योंकि अभी ये डिस्क्रिमिनेटरी जोन से ज्यादा हो गया, मोर देन इक्वल 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। अब इसका आप TVS करो और पता करो जेस्टेशनल सैक है किधर। इफ योर sac is in uterus, then it is a good thing and it is normal pregnancy. If sac is outside the uterus, that means it is a case of ectopic pregnancy. Very easy concept. So अगर मैं एग्जाम्पल के दौर पे आपको पता मतलब एग्जाम्पल ऐसे दूं कि आपको पता चले कि डायग्नोसिस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, तो चलो मान लो कि आपके पास सपोज एक मदर आपके पास आई विद द कंप्लेंट्स ऑफ एमिनोरिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ठीक है, और पेन इन एब्डोमेन जो कि टिपिकली प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है, विद द कंप्लेंट्स ऑफ दिस। और कौन सा जेस्टेशनल एज है मदर को? मदर का उस टाइम मान लो कि 3.5 to 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज है, ठीक है। सो आप अभी क्या करोगे, ये सब कंप्लेन व्हेन मदर इज गिविंग टू यू एज अ हेल्थ केयर वर्कर, जस्ट चेक द बीटा HCG लेवल, ठीक है। आपने बीटा HCG लेवल चेक किया और मान लो कि बीटा HCG लेवल आपको मिला 30 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ठीक है। सो आपको पता है कि इफ बीटा HCG लेवल वैल्यू मोर देन इक्वल मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होगा तो मतलब मदर प्रेग्नेंट है। तो इससे तो आपको पता चल गया कि मदर प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है ये तो पता चल गया, सो वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ठीक है। अब वो कंफर्म आप नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस बीटा HCG, तो उसके लिए आप क्या करोगे, चलो कि उसका TVS करती हूं, ठीक है। आप आपने सेकेंड स्टेप 2 अप्लाई किया। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, TVS, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब इससे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जेस्टेशनल सैक किधर मिल रहा है, जेस्टेशनल सैक। बट मदर आपके पास आया एट 3.5 to 4 वीक्स में, तो इसमें आपको जेस्टेशनल सैक मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि जेस्टेशनल सैक तो मिलता है मोर देन इक्वल 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में। सो TVS से आपको पता चला नो जेस्टेशनल सैक, ठीक है, नो जेस्टेशनल सैक इनसाइड यूटेरस। सो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होगा और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी होगा, एज बिकॉज द जेस्टेशनल एज इज लेस देन 5 वीक्स। सो आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप अभी फाइंड आउट करो, रिपीट द बीटा HCG लेवल, रिपीट बीटा HCG लेवल, ठीक है। कंटिन्यू उसका बीटा HCG लेवल मॉनिटर करते जाओ आप। सो 48 आवर्स पहले बार किया, देन अगेन आफ्टर 48 आवर्स, अगेन आफ्टर 48 आवर्स, ऐसे कंटिन्यू करते करते जब बीटा HCG लेवल आपका पहुंच गया 1500 से 2000 के रेंज पे, अब इस रेंज में पहुंच गया मतलब नाउ you can able to find out the gestational sac, you can see the gestational sac, it is a cut off range gestational sac, ठीक है। जब 1500 से ज्यादा हो जाएगा बीटा HCG लेवल, then you do the TVS, ठीक है। तो TVS से आपको 2 केस मिल सकता है, एक इनसाइड द यूटेरस, इनसाइड यूटेरस यू फाइंड आउट द जेस्टेशनल सैक, ठीक है,
और या फिर आपको आउटसाइड यूटेरस मिलेगा, आउटसाइड यूटेरस। अगर इनसाइड यूटेरस मिल रहा है तो वेल एंड गुड, दैट इज अ केस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर आउटसाइड यूटेरस मिल रहा है तो दैट मीन्स दिस इज कंफर्म दैट मदर इज कैरिंग द ectopic pregnancy. So this is the diagnosis method of ectopic pregnancy. You should have knowledge the stepwise diagnosis protocol to find out the ectopic pregnancy, how to differentiate this normal pregnancy and ectopic pregnancy by checking the beta HCG level, by doing the TVS, and when to use the discriminatory zone of beta HCG level. So this is your diagnosis method of ectopic pregnancy, which was our today's topic of discussions. Now apart from that, one small topic, one small concept or terms, that is heterotropic pregnancy, ठीक है, हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी। अब ये क्या होती है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल जेस्टेशनल सैक आपको मिल सकता है, उनमें से वन सैक will be inside uterus, that is normal pregnancy, and another sac, gestational sac, will be outside uterus, ठीक है। So heterotropic pregnancy में if it is the uterine cavity, ठीक है, इनमें से आपको one gestational sac you will find out inside the uterus, that is normal condition, and another can be here, can be here, या फिर here or outside here. So this is the case of heterotropic pregnancy. So today our topic of discussion was the diagnosis of ectopic pregnancy. In next class we will be discussing in detail about the management of ectopic pregnancy. So dear students, I hope this class will be useful for you all, and I'm requesting you to watch our previous class of ectopic pregnancy, then go for this diagnosis class, and in next class we will be coming with the management of ectopic pregnancy. Thank you all.